A big message to the Hindu community from Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Yogi Adityanath here has said, "Batenge to katenge." Basically, he's saying that there has to be unity within the Hindu community, because if you're not united, you will fall, you will be divided, and then you will be attacked. Chief Minister Yogi Adityanath also said, "Ek rahenge to nek rahenge." This is in reference to Bangladesh crisis. What did he mean? Why did he say what he did? Let's listen in to Yogi Adityanath. और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। So basically, Uttar Pradesh Chief Minister is saying, united we stand, divided we fall. And this message clearly to all Indians as well, in background of what is unfolding in Bangladesh. I want to go across to Piyush Mishra joining me. Piyush, speaking on the occasion of Janmashtami. This is also the comment that has come in, which is very interesting. But stay on with me, Piyush, because we're already getting reactions from Anila Singh is joining me right now from the BJP. Ms. Anila Singh, why do you think what has been said by the Uttar Pradesh Chief Minister, what do you think he's trying to refer, and why have the Bangladesh metaphor here for India? A happy Janmashtami to you and to your viewers. And today is a holy day of Bhagwan Shri Krishna, and I really wish all the opposition parties who are just commenting and giving reaction on what Yogi Adityanath ji has said, or all these pseudo-secular people who are attacking Yogi Adityanath ji of what he has said, I just want to say one thing: remember what Bhagwan Shri Krishna has told to us. And whatever he has said, according to that, whatever Yogi Adityanath ji has said, he has aptly said. If we Hindus are not going to be united, very soon we are going to see the same consequences which we have seen in Bangladesh in today's date. The political party like Congress, or the political party who follow the same ideology, and especially if I talk about the ideology of Britishers, divide and rule, which Congress party, political party which was being handmade by the Britishers to divide our country, they are doing till date. So whatever you so not follow the British rule of divide and rule, as used to say, is what BJP and Anila Singh is saying. Anila, I want to thank you on that, because let's listen into what other parties have to say. Samajwadi Party's Anurag Bhadoria is joining me. अनुराग जी, आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि हिंदूज के लिए लगता है ये मैसेज दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यूनाइटेड रहना है, कैसे इस मैसेज को आप देखते हैं? बांग्लादेश क्राइसिस के रिफ्लेक्शन में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसे तो एक भाषा शैली पे संयम सभी को रखना चाहिए। दूसरा कि नफरत की राजनीति इस देश में कौन करता है सबको पता है। डिवाइड एंड रूल इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाज के अंदर में बांटना है और राज करना है। जाति धर्म की राजनीति कौन करता है? मैं तो हमेशा कहता हूँ विकास की राजनीति करो ना। जैसे हम कहते हैं विकास की राजनीति करो, महिला समस्या पे बात करो, किसानों की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। इस पे तो वो बातें नहीं करता भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये करते हैं बात किस पे? डिवाइड एंड रूल। ऐसी बात करो जिससे समाज के अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिवाइड हो। लेकिन आप कह रहे हैं अनुराग जी कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि डिवाइड एंड रूल में मत पड़ो। हाँ, नहीं, उनका नहीं, बीजेपी डिवाइड एंड रूल करती है। यही तो उसका थ्योरी है, ये इसी पे तो पूरी उनकी आइडियोलॉजी टिकी हुई है। इसी पे तो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही तो पार्टी है जो सत्ता के लिए नफरत की बात करती है। ये कब समाज को एक करने की बात करती है?
हम करते हैं, हम तो बोलते भी हैं कि समाज को एक रखना है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार यही कहते हैं, अनेकता में एकता यही कहती है, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का देश है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात इस देश के अंदर की जाती है। हम तो पूरे ब्रह्मांड को एक मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हमारे समाज में, हिंदुस्तान में एक दूसरे को बांटने की बात करती है, एक दूसरों को बांट के राजनीति करने की बात करती थी कि राजनीति करो आप, लेकिन राजनीति कम से कम ऐसा तो मत करो जिसमें आप न्याय की बात न कर पाओ। हमें राजनीति करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, लेकिन आप डिवाइडेड रूल तो मत करो ना। तो यहाँ राजनीति करो ना, हेल्दी राजनीति भी तो होती है ना, कॉम्पिटिशन करो कि समाजवादी ने जो काम किया था उससे ज्यादा करो आप। हमने अगर एक एक्सप्रेसवे बनाया था, आप 5 बनाओ। हमने एक स्टेडियम बनाया था, आप 4 स्टेडियम बनाओ। हमने अगर यहाँ पे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, आप 10 करोड़ लोगों को रोजगार दो। आप चलिए ठीक है अनुराग जी, आपने समाजवादी पार्टी का भी इसमें जो है स्टेटिस्टिक्स डाल दिए हैं, प्रमोशन, ठीक है। और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, is what he had to say. But let's listen in to what he said. What was the connect? Why did he use this metaphor specifically on the occasion of Janmashtami as he was speaking? Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे।